مسافر خانے کا منتظم لکھوندر سنگھ مجھے نہ جگاتا تو میں جانے کتنی دیر مزید سوتا۔ سورج ابھی پوری طرح بلند نہیں ہوا تھا۔ میں نے سردار جی کی طرف سے ناشتے کی پیشکش مسترد کر دی اور کمرے کا کرایہ اس کے حوالے کر کے وہاں سے چل پڑا۔ شہر کے مضافات سے آگے بڑھنے کے بعد سڑک پر گاڑیوں کا ہجوم ایک بار پھر کم ہو گیا اور میں نے رفتار بڑھا دی۔ میں نے جموں و کشمیر کی حدود شروع ہونے سے پہلے اپنے حلیے اور شکل و صورت میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ البتہ گاڑی کو بدلنے کا میرے پاس فی الحال کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے اسی گاڑی میں سری نگر پہنچنا تھا اور وہاں جا کر اسے لکشمن اور راگنی کی نظروں میں آنے سے بچانے کا کوئی قابل اعتماد طریقہ ڈھونڈنا تھا۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا زمین کی زرخیزی میں بھی نمایاں اضافہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ البتہ گھنٹے بھر سفر کے بعد سطح زمین غیر ہموار ہونے لگی اور چھوٹے بڑے سرسبز ٹیلوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ سڑک کی حالت بھی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ پھر سڑک باقاعدہ اونچی ہونے لگی۔ میں نے اپنے طور پر اندازہ لگایا تھا کہ جالندھر سے پٹھان کوٹ تک کا لگ بھگ 60 میل کا فاصلہ میں زیادہ سے زیادہ 2-2.5 گھنٹے میں طے کر لوں گا، لیکن اس میں پورے 3 گھنٹے لگے۔ پٹھان کوٹ میرے اندازے سے زیادہ پر رونق قصبہ ثابت ہوا۔ جلد ہی مجھے اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ سری نگر اور کشمیر کے دیگر علاقوں سے آنے والے ٹرک کٹھن سفر کے بعد عموماً یہیں پہلا پڑاؤ ڈالتے ہوں گے۔ اسی طرح ہندوستان بھر سے آنے والی گاڑیاں بھی یہیں شب بسری کر کے صبح یہاں سے روانہ ہوتی ہوں گی۔ میں نے شہر سے باہر سڑک سے ہٹ کر ایک الگ تھلگ جنگل نما جگہ پر اپنی گاڑی روک دی۔ وہاں سے گزرنے والے یہی سمجھتے تھے کہ انجن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہاں گاڑی روکی گئی ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی ندی تلاش کی اور تیزی سے ہاتھ چلانے لگا۔ ہونٹوں کے اوپر ایک شاندار تلوار مار کا مونچھ، تیل سے جمے سیاہ بالوں میں درمیان سے نکالی گئی مانگ اور ان پر جمی ہوئی قیمتی مخملی ٹوپی۔ اس کے بعد میں نے آنکھوں پر گول سنہری فریم والا چشمہ بھی پہن لیا۔ آخر میں انتہائی نفیس شیروانی کی باری آئی۔ سب سے آخر میں اپنی ناک اور ہونٹوں کی ساخت بدلنے کے لیے میں نے نرم سپرنگوں کی جوڑی نتنوں میں چڑھا لی۔ اپنی کوشش کے مطابق اب میں اپنے سابقہ بھیس سے بالکل الگ تھلگ 30-35 سال کا ایک مالدار بیوپاری یا زمیندار دکھائی دے رہا تھا۔ اب مجھے سری نگر پہنچنے کے بعد ایک قیمتی چھڑی خریدنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرا نیا بہروپ مکمل ہو جاتا۔ تاہم اب مجھے ایک مشکل فیصلہ درپیش تھا۔ اپنا پستول اور اضافی میگزین سفری بیگ میں رکھنا سنگین خطرے کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میں نے اپنے حلیے سے خود کو متمول اور باروب ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی اور میرے تجربے کے مطابق پولیس ناکوں پر تعینات اہلکار شاذ و نادر ہی ایک قیمتی گاڑی میں سوار کسی ذی قدر دکھائی دینے والے شخص سے تفصیلی پوچھ گچھ کی جرت کرتے ہیں۔ گاڑی اور سامان کی تلاشی کے لیے تو اس سے بھی بڑا جگرا درکار ہوتا ہے۔ تاہم میں محض اپنی خود اعتمادی کے سہارے میں اتنا سنگین خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ تلاشی کی کسی بھی کارروائی میں سب سے پہلے سفری بیگ ہی ٹٹولا جاتا۔ کچھ دیر دماغ لڑانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنا ہتھیار گاڑی کی سیٹوں کی گدیوں کے نیچے یا دیگر کسی محفوظ مقام پر چھپانا زیادہ بہتر رہے گا۔ گہری توجہ سے جائزہ لینے پر مجھے اسٹیئرنگ کے پیچھے والا خلا اپنے مقصد کے لیے سب سے مناسب لگا۔ ایک تو گاڑی میں گھس کر خاص طور پر اسٹیئرنگ کے پیچھے کی جگہ ٹٹولے بغیر پستول کا نظروں میں آنا ممکن نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ کسی ہنگامی صورتحال میں میرا ہتھیار چند ہی لمحوں میں میرے ہاتھ میں ہوتا۔ البتہ دونوں اضافی میگزین چھپانے کے لیے سیٹوں کی گدیوں کے درمیان انتہائی مناسب جگہیں دستیاب تھیں۔ میں نے پستول کو ایک نائلون کی پٹی کے ذریعے طے شدہ مقام پر چھپا دیا اور اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ جھٹکے لگنے سے وہ نکل کر نہ گرے گا۔ لبلب بھرے ہوئے میگزین بھی آسانی سے نظروں سے اوچھل ہو گئے۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد میں نے گاڑی میں بیٹھ کر اگنیشن میں چابی گھمائی اور میری گاڑی نہایت وفاداری سے دور پہاڑوں کی طرف بلند ہوتی بل کھاتی سڑک پر آگے بڑھنے لگی۔ پٹھان کوٹ سے باہر نکلتے ہی میں نے جی ٹی روڈ چھوڑ کر گاڑی دائیں طرف جانے والی سڑک پر موڑ دی۔ یہ کشادگی میں کچھ کم تھی تاہم حالت خاصی مناسب تھی۔ مجھے اچھی خاصی رفتار سے گاڑی دوڑانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ 20-25 منٹ کے سفر کے بعد میں میل بھر چوڑائی میں پھیلے دریائے راوی کے کنارے واقع ہندوستانی پنجاب کے آخری قصبے مدھو پور پہنچ گیا۔ مجھے کسی سے راستہ نہیں پوچھنا پڑا کیونکہ میرے آگے پیچھے اس سرسبز قصبے کی اس کشادہ اور مصروف سڑک پر رواں دواں لگ بھگ سب گاڑیاں ایک بڑے پل کی طرف جا رہی تھیں۔ تاہم مجھے میل بھر پہلے ہی نظر آ گیا کہ پل کے قریب پہنچنے والی تمام گاڑیاں ایک قطار میں لگتی جا رہی ہیں، جو کم از کم 1 فرلانگ طویل تو ضرور رہی ہوگی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دریائے راوی کے پار ریاست جموں و کشمیر میں استقبال کی علامت ہے۔ ان سب گاڑیوں کو تلاشی اور پوچھ گچھ کے مراحل سے گزار کر ہی پل پار کرنے کی اجازت ملے گی۔ میں نے بھی اپنی گاڑی قطار میں لگا دی اور صبر و تحمل کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔
गाड़ी वक्फे वक्फे से मुख्तसर फासला तय करती थी और फिर रुक जाती थी। इस दौरान मेरे पीछे भी गाड़ियों की कतार लगती जा रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद भी मैं कतार के इब्तिदाई हिस्से से 100-125 गज के फासले पर था। कम से कम 20 ट्रक और छोटी बड़ी तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियां मेरे आगे थीं। मैंने गाड़ी की खिड़की से गर्दन निकाल कर जायजा लिया। मैंने देखा निस्फ दर्जन के करीब पुलिस एहलकार बारी बारी सब गाड़ियों में झांक रहे हैं। उनके अंदाज में कोई उजलत नहीं थी। जैसे जैसे नाका करीब आ रहा था मेरे आसाब में तनाव बढ़ता जा रहा था। मैंने खुद को संभलने की तंबीह की। खुद को पुरसुकून और पुरएतमाद जाहिर करना वक्त की अहम तरीन जरूरत थी। तनाव और इस्तराब की अलामत महसूस करते ही वो लोग मशकूक हो जाते और उमूमी पुछगिछ, कड़ी जांच पड़ताल और तफसीली तलाशी में बदल जाती। अब मैं देख सकता था कि नाके वाले इक्का दुक्का गाड़ियों को सड़क से उतार कर एक तरफ खड़ा करने का हुक्म दे रहे हैं, जहां पुलिस एहलकारों की एक और टोली मौजूद थी। बिलाखिर मैं 2 कमरों पर मुश्तमिल 1 मंजिला पुलिस चेक पोस्ट के काफी करीब पहुंच गया। तभी मुझे 2 संतरियों और 1 हवालदार पर मुश्तमिल पुलिस एहलकारों की एक टोली मुझसे आगे वाले ट्रक के ड्राइवर से कुछ सवाल जवाब करती नजर आई। हवालदार ने ड्राइवर की तरफ से पेश करदा कुछ कागजात का बगौर जायजा लेते हुए अपने दोनों मातहतों को ट्रक के अकबी हिस्से का जायजा लेने का इशारा किया। मैं बगौर उन पुलिस वालों का मुशाहिदा कर रहा था। वो तीनों खिलाफे रिवायत खास से मुस्तैद दिखाई दे रहे थे। मेरे देखते ही देखते दोनों संतरी ट्रक के अकबी हिस्से में चढ़ गए, जो बज़ाहिर खाली दिखाई दे रहा था। तहम उन दोनों ने गहरी नजरों से जायजा लिया, हत्ता के ट्रक के फर्श पर फैली पराली को भी एनफील्ड राइफलों की नाल और अपने भारी बूटों की मदद से हटाकर देखा। मैंने गहरा सांस लेकर एक बार फिर खुद को पुरसुकून किया और दायां हाथ बढ़ाकर स्टीयरिंग के अकब में पोशीदा पिस्तौल को टटोला। फिर मैंने झुककर बाएं हाथ से पिस्तौल का दस्ता मजबूती से पकड़ा और दाएं हाथ से लीवर खींचकर उसे कॉक कर दिया। अब वो मेरे एक इशारे पर गिरफ्त में आने और गोलियों की बौछार करने के लिए तैयार थी। ट्रक ने जैसे ही आगे की तरफ हरकत की, मैंने उसके पीछे पीछे गाड़ी आगे बढ़ाई और हवालदार की तरफ से रोकने का इशारा किए जाने से पहले ही ब्रेक पर दबाव बढ़ा दिया। लगभग 6.25 फुट का भारी भरकम हवालदार अपने दोनों संतरियों समेत झूमते हाथी की तरह मेरी तरफ बढ़ा। मैंने चंद लम्हों के मुशाहिदे से अंदाजा लगा लिया कि चेहरे पर सिखों वाली दाढ़ी और सर पर मखसूस पगड़ी न होने के बावजूद ये पंजाब ही का सपूत है। वो मेरी गाड़ी की खिड़की के करीब पहुंचा तो मैंने अपने चेहरे पर पुरएतमाद मुस्कुराहट सजाते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, राम राम पुलिस ऑफिसर जी। मुझे पहले तो लगा कि मेरे चेहरे की दोस्ताना मुस्कुराहट और पुरएतमाद अंदाज में खैर मकदम ने उस पर कोई खास असर नहीं किया, लेकिन जब उसने जवाब में पुरजोश लहजे में जवाबी राम राम कहा तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। वो मेरी तरफ झुककर चंद लम्हे मुझे नजरों में तोलता रहा। मैंने इस दौरान मजीद कुछ न कहा। बिलाखिर उसने सवाल किया, आपका शुभ नाम क्या है सरकार? कहाँ से आए हैं और कहाँ की तैयारी है? उसकी बात सुनकर भरपूर मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे रोहित शेखर कहते हैं और मैं दिल्ली की एक वुमेन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हूँ। इतना कहकर मैंने अपने अल्फाज के असरात का जायजा लिया। वो गहरी तवज्जो से मेरी बात सुन रहा था। उसके दोनों मातहत इस दौरान अपनी राइफलें कांधे से लटकाए उसके अकब में मौजूद थे। मैंने हवालदार के चेहरे पर कोई गैर मामूली तासुरात और आंखों में शक की कोई झलक न देखते हुए खुशगवार लहजे में कहा, और आपको ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है कि मैं श्रीनगर जा रहा हूँ और अकेला इसलिए जा रहा हूँ कि मैं किसी फैमिली ट्रिप पर नहीं हूँ। वहाँ एक ऑफिशियल मीटिंग अटेंड करके 2 दिन के बाद इसी तरह 500 मील धक्के खाकर वापस दिल्ली पहुँचना है। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरे लहजे से बेचारगी और झुंझलाहट झलक रही हो। उसके साथ ही मैंने अपनी वॉस्कट की जेब से शनाख्ती दस्तावेज निकालकर हवालदार की तरफ बढ़ा दिए और हाथ बढ़ाकर गाड़ी का अकबी दरवाजा खोल दिया ताकि दोनों संतरी पिछली सीट पर रखे सफरी बैग का जायजा ले सकें। लेकिन मैंने देखा कि हवालदार ने मेरे कागजात पर नजरें डालते हुए अपने मातहतों को इशारे से आगे बढ़ने से रोक दिया। हवालदार के तासुरात बता रहे थे कि वो किसी शक शुबे में मुब्तला नहीं हुआ। उसने आगे बढ़कर गाड़ी का अकबी दरवाजा बंद करते हुए पूछा, ये गाड़ी आपकी है मैनेजर साहब? उसकी बात सुनकर मैंने हल्का सा तंजिया कहकहा लगाया और कहा, क्यों मजाक करते हो ऑफिसर? हिंदुस्तान में भला कोई दरमियाने दर्जे का तनख्वाहदार मुलाजिम इतनी कीमती गाड़ी खरीदने का सपना भी देख सकता है? ये विमेन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी है और ज्यादातर दफ्तरी कामों में ही इस्तेमाल होती है। इसके साथ ही मैंने दोनों संतरियों की तरफ देखते हुए पूछा, आप लोगों को चेकिंग करनी हो तो गाड़ी की डिग्गी खोल दूं? इस पर हवालदार ने नफी में गर्दन हिलाकर कहा, इसकी जरूरत नहीं है रोहित जी। ये पूछना था कि इससे पहले खुद गाड़ी चलाकर श्रीनगर गए हो? मेरा मतलब है रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक है।
मैंने हंसते हुए उसकी बात काट दी। कहा, आप फिक्र न करो ऑफिसर, कॉलेज के जमाने से आना जाना है। 6 बार गाड़ी चलाकर और 2 बार मोटरसाइकिल पर जा चुका हूँ। बल्कि मैं तो श्रीनगर से आगे के ज्यादा खतरनाक रास्तों वाले इलाकों बांडीपुरा और कुपवाड़ा की भी खाक छान चुका हूँ। उसने हाथ उठाकर कहा, बस बस फिर ठीक है, आप जा सकते हैं। मैंने फौरन गाड़ी आगे बढ़ा दी। रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर दाखिल होने के बाद मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैं जानता था कि अब मुझे ज्यादा कड़ी सिक्योरिटी वाली चेक पोस्टों से गुजरना है, लेकिन मैंने कम से कम पहली आजमाइश तो कामयाबी से सर कर ली। जम्मू के इब्तिदाई बड़े कस्बों में से एक कठुआ से गुजरते हुए मुझे पहली बार लोगों के रहन सहन, शक्ल सूरत और हुलियों में तब्दीली का एहसास हुआ। ताहम मेरी नजरें सामने सड़क पर ज्यादा मरकूज रहीं, क्योंकि किसी भी वक्त कोई पुलिस नाका रास्ते में हायल हो सकता था। अब इलाका सतह मुर्तफा में तब्दील हो चुका था और दाएं हाथ पर शायद सिर्फ 5-10 मील के फासले पर बुलंद होते सरसब्ज पहाड़ों का सिलसिला साथ साथ चल रहा था। लच्छीपुरा नामी छोटे से कस्बे से मुल्हिका एक पहाड़ी नाला पार करने के बाद पहाड़ मजीद करीब आ गए। मैं अब खतरात को वक्ती तौर पर जहन से झटक कर बदलते मौसम और कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहा था। कुछ ही देर के बाद मैंने निस्बतन बड़े पहाड़ी नाले पर बना पुल पार किया। बाएं तरफ जाते एक नीम पुख्ता रास्ते के आगाज में मुझे हीरानगर 5 मील का छोटा सा बोर्ड नजर आया। अब मेरे दोनों तरफ छोटी छोटी सरसब्ज पहाड़ियां साथ चल रही थी, जबकि वक्फे वक्फे से दाएं तरफ सर उठाए खड़े हजारों फुट बुलंद पहाड़ों की झलक भी दिखाई दे जाती थी। मैं अब खुद को ज्यादा पुरएतमाद महसूस कर रहा था। शायद मेरा वो अंदाजा मुबालगे पर मबनी था कि रियासत जम्मू और कश्मीर में दाखिल होने के बाद मुझे कदम कदम पर चेक पोस्टों का सामना करना पड़ेगा। ताहम 10-12 मील आगे बढ़ते ही मेरी ये खुशफहमी हवा हो गई जब मुझे बुलंदी की तरफ बढ़ती सड़क पर गाड़ियों की एक तवील कतार नजर आई। मैंने बोरियों से लदी एक जीप के पीछे गाड़ी रोक दी और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। गाड़ियां बहुत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रही थीं। मुझे लगा कि इस बार की चेकिंग मेरा कम से कम 1 घंटा खा जाएगी। रात होने तक श्रीनगर पहुंचने की खुशफहमी तो पहले ही करीबुल मर्ग थी। मुझे काफी दूर से ही पता चल गया कि उस चेक पोस्ट पर पुलिस के साथ फौज के जवान भी तैनात हैं और पुछगिछ से कहीं ज्यादा गाड़ियों की तलाशी पर जोर दिया जा रहा है। मेरे दिमाग के किसी दूर उफ्तादा गोशे में ख्याल उभरा कि मुझे कड़ी तलाशी के मरहले से पहले ही पिस्तौल और मैगजीन से जान छुड़ा लेनी चाहिए, लेकिन मैंने फौरन ही ये ख्याल जहन से झटक दिया। हथियार के बगैर इतनी खतरनाक मुहिम पर निकलना खुदकुशी के मुतरादिफ है। पकड़े जाने के खौफ से अपना काबिल एतमाद पिस्तौल फेंककर यहाँ से श्रीनगर पहुंच भी जाऊं तो उस अजनबी शहर में अपने लिए नए हथियार का बंदोबस्त कैसे करूंगा। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि मेरा पिस्तौल नजरों में आना बहुत मुश्किल है। इसी शशोपंज की जहनी कैफियत में मेरी गाड़ी नाके के काफी करीब पहुंच गई। सामने सड़क के किनारे एक बड़ा और एक निस्बतन छोटा खैमा नस्ब था। उन दोनों खैमों के सामने 2 मेजें और कई कुर्सियां बिछी हुई थीं, जिन पर बावर्दी अहलकार बराजमान दिखाई दे रहे थे। सड़क के दोनों तरफ 40-50 गज तक खारदार तारों की दोहरी तेहरी बाड़ इस अंदाज में लगाई गई थी कि कोई गाड़ी जांच पड़ताल से बचने के लिए सड़क से उतरकर आगे जा ही नहीं सकती थी। नाले के करीब पहुंचते ही मुझे पुलिस की वर्दी वाले 2 उधेड़ उमर संतरी और फौजी वर्दी में मलबूस एक जवान लांस नायक अपनी तरफ बढ़ते नजर आए। संतरियों में से एक के पास 303 राइफल थी, जबकि दूसरे ने लकड़ी के दस्ते वाली मार्क 2 स्टेन गन कांधे से लटका रखी थी। अलबत्ता वो दोनों काफी मुस्तैद दिखाई दे रहे थे। जवां साल नायक ने कूल्हे पर लटके होल्स्टर में एक पिस्तौल उड़स रखा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक लांस नायक मुझसे मुखातिब हुआ। उसका लहजा बता रहा था कि वो गालिबन हरियाणा के किसी इलाके का रांगड़ है। बोला, नमस्ते जी, जरा गाड़ी का इंजन बंद कर दो और उधर हवलदार साहब के पास जाकर अपनी एंट्री करवा लो, जब तक हम गाड़ी की छान फटक कर लेवेंगे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बुरी तरह धड़का। मुझे तवक्को नहीं थी कि मुझे तलाशी लेने वालों को अपनी लच्छेदार बातों से मुतासिर करने का मौका ही नहीं मिलेगा और सीधे उनके आला अफसरान के सामने पेशी हो जाएगी। मेरे पास हिचकिचाहट दिखाने या किसी और तरह कायल करने की गुंजाइश ही नहीं थी। तहाँ मैंने अपने लहजे को दोस्ताना और पुरएतमाद बनाते हुए कहा, जो हुक्म सरकार। ये पीछे मेरा ट्रैवल बैग पड़ा है, इसमें कोई ताला नहीं है, डिग्गी भी खोल दी है। लांस नायक ने अपने खड़े लहजे में नरमी लाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए कहा, थारी घनी कृपा है महाराज, बस 2 मिनट लगेंगे। मैंने गाड़ी का दरवाजा खुला छोड़कर चेक पोस्ट की तरफ बढ़ा। अलबत्ता मैं कनखियों से देख रहा था कि दोनों संतरियों में से एक गाड़ी के अगले दरवाजे से अंदर झांक रहा है, जबकि दूसरा पिछला दरवाजा खोल रहा है। अलबत्ता लांस नायक सिर्फ उन दोनों की कारकर्दगी जांचने तक महदूद था। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मैंने पिस्तौल, मैगजीन और ट्रांसमीटर छुपाने में ज्यादा एहतियात से काम नहीं लिया। मेरी तरह संतरी भी तो स्टीयरिंग के पीछे हाथ डालकर देख सकता है।
सीटों की गद्दियों के खला में उंगलियां फिराते ही मैगजीन की मौजूदगी भी महसूस हो जाती। ट्रांसमीटर तक पहुंचने के लिए तो सिर्फ सफरी बैग के कपड़े बाहर निकालने की जरूरत थी, लेकिन मैंने फौरन अपने जहन से तशवीश को झटक दिया। इतनी बारीक बीनी से तलाशी उमूमन गहरे शक या मुखबरी का नतीजा हुआ करती है। लांस नायक का रवैया ऐसी किसी बात की निशानदही नहीं कर रहा। हवालदार गंदुमी रंगत का उधेड़ उमर शख्स था। फौज में बरसहा बरस तक धक्के खाने के असरात उसके खुरदरे चेहरे से नुमाया थे। ताहम जब वो बोला तो यूपी वालों की तरह साफ और नर्म लहजे में हिंदी में बात की थी। मैंने उसके सवालात पर वही मौक़िफ़ बयान किया जो पिछले नाके पर अपनाया था। वो मेरी बातें गौर से सुनने के साथ एक फॉर्म पर लिख भी रहा था। उसका चेहरा इस दौरान बेतासुर था। ताहम मैंने पहले भी मुतअद्दिद बार गाड़ी चलाकर श्रीनगर और दीगर इलाकों में जाने के तजुर्बे का दावा किया तो उसने इत्मीनान के इजहार के लिए सर हिलाया। मेरी नजरें हवालदार पर थीं, ताहम इस दौरान मेरी कुव्वत समात अपनी गाड़ी की तरफ से कोई गैर मामूली आवाजें सुनने पर मरकूज थी। अगर मेरा पिस्तौल उनके हाथ लग गया होता तो अब तक लांस नायक खुद अपना पिस्तौल ताने मेरे सर पर पहुंच चुका होता। तभी हवालदार ने मुझे मुतवज्जे करते हुए पूछा, आपने श्रीनगर में ठहरने के लिए कहीं बुकिंग करवा रखी है तो होटल का नाम लिखवा दें। मैंने कहा, सरकार, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के करता धरता तो होटल ग्रैंड पैलेस में ठहरे हुए हैं। मैं तो इमरजेंसी में वहां जा रहा हूं और अभी तो मुझे खुद पता नहीं कि कहां ठिकाना होगा। उसने जवाब में नरम लहजे में कहा, चलें जी, मैं आपके लिए भी होटल ग्रैंड पैलेस लिख देता हूं। खाना पूरी ही तो करनी है। फिर उसने सफाई पेश करते हुए कहा, बस जी, ऊपर से काफी दबाव है। वादी में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। मैं उसकी बात के जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि मुझे लांस नायक की पुकार सुनाई दी। वो मुझे गाड़ी में बैठकर जल्दी आगे बढ़ने का कह रहा था। बातों के चक्कर में हवालदार के पास काफी वक्त लग गया था। मैंने अपनी शनाख्ती दस्तावेज लेकर हाथ के इशारे से हवालदार को सलाम किया और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। चंद ही मिनटों बाद मेरी गाड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए उस नाके से कई मील आगे जा चुकी थी। मेरा दिल खुशी से बल्लियों उछल रहा था। मैं एक कड़ी आजमाइश में सुरखरू होकर सही सलामत बचकर निकल आया था। सड़क अब भी सीधी आगे बढ़ रही थी, ताहम चढ़ाई उतराई अब बहुत बढ़ गई थी। उधर पिछले नाके पर होने वाले तजुर्बे के बाद से मेरे जहन में ये ख्याल मुसलसल पलट पलट कर आ रहा था कि मुझे मजीद महफूज जगह अपना पिस्तौल छुपाना चाहिए। इसके अलावा मुझे पहले पुलिस और फिर फौज के हवालदार के लहजे में मेरी मंजिल जानने के बाद नमूदार होने वाली हैरानी मुस्तरिब कर रही थी। किसी गैर मकामी शख्स का इतने दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में इतना तवील फासला तनहा तय करना उनके लिए गैर मुतवक्के बात थी। मैंने सोचा कि इस तरह मैं उनकी यादाश्त पर पूरी तरह नक्श हो जाऊंगा। लिहाजा मैंने फैसला किया कि आइंदा चेक पोस्ट पर मैं किसी करीबी शहर को अपनी मंजिल बताऊंगा। मैं जानता था कि उस रास्ते पर अगला बड़ा शहर उधमपुर है, इसलिए मैं उसे ही अपनी आइंदा मंजिल करार दूंगा। ताहम चंद मील आगे बढ़ने के बाद जब मुझे सड़क के किनारे अखंड प्रमाधन नवनाथ मंदिर लिखा नजर आया तो मेरे जहन में रोशनी सी उतर आई। मुझे अपने आप पर हैरत हुई कि इतने सामने की बात पहले मेरे जहन में क्यों नहीं आई। रियासत जम्मू और कश्मीर में अनगिनत तारीखी मंदिर और हिंदू धर्म के दीगर मुकद्दस मकामात मौजूद हैं और हिंदुस्तान भर से यात्री साल भर उनकी जियारत के लिए आते रहते हैं। रोहित शेखर भी तो गहरी अकीदत रखने वाले उन यात्रियों में से एक हो सकता है। ये ख्याल जहन में आते ही मैंने गाड़ी बाएं तरफ जाती एक नीम पुख्ता सड़क पर मोड़ ली। मंदिर के उस बोर्ड पर उसी तरफ जाने का इशारा किया गया था। बमुश्किल 1 मील फासला तय करने के बाद मुझे मंदिर के 2 बुलंदोबाला मीनार नजर आए। उनके तर्ज तामीर से साफ जाहिर था कि ये कई सदी पहले की यादगार हैं। मैं एक बड़े से मेहराबी दरवाजे से गुजरकर मंदिर के वसी अहाते में दाखिल हुआ। रास्ते के दोनों तरफ दरख्तों की कतारें थी और उनके पीछे सब्जाजार दिखाई दे रहा था। मंदिर की आलीशान इमारत के दाखिली दरवाजे से जरा हटकर मैंने गाड़ी खड़ी की। ऐन उसी वक्त मंदिर का एक उधेड़ उमर पुजारी सामने खड़ा नजर आया। मैंने अपने चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट सजाई और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतर आया। उसके चेहरे पर हैरानी के तासुरात नुमाया थे, ताहम जब मैंने निहायत फिदवियाना अंदाज में उसे प्रणाम कहा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने जवाब में श्री राम कहकर मेरा खैर मकदम किया। मैंने उसे बताया कि मैं उधमपुर जा रहा था, लेकिन रास्ते में मंदिर का बोर्ड देखा तो यहाँ की जियारत करने और इबादत करने का फैसला किया। वो धर्म से मेरी मोहब्बत से बहुत मुतासिर हुआ और बनफ्स नफीस मंदिर का दौरा और इबादत करवाई। उसके बाद प्रसाद करते हुए खाने पीने के बारे में पूछा। मैंने अपने लहजे में अकीदत की मिठास भरते हुए कहा, मुझे खाने पीने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो बस भगवान के ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर शीश नवाकर अपना कल्याण करने निकला हूँ, परंतु मुझे ऐसी पवित्र यात्राओं का ज्यादा नहीं पता। अगर तुम कृपा करके मुझे यहाँ से श्रीनगर तक के कुछ महान मंदिरों के बारे में बता दो तो मैं तुम्हारा आभारी हूँगा।
میری بات سن کر گوپال داس نامی وہ پجاری بہت خوش ہوا اور اس نے مجھے ترتیب سے کئی مشہور مندروں اور اہم مقدس مقامات کے نام اور ان کی جائے وقوع اچھی طرح ذہن نشین کروا دی۔ میں وہاں سے روانہ ہوا تو خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس پجاری نے مجھے مرکزی سڑک تک پہنچنے کا ایک متبادل مختصر راستہ بھی بتایا تھا جو ایک مقدس چشمے کے پاس سے گزرتا تھا جہاں اشنان کرنے سے پچھلے کئی سالوں کے پاپ دھل جاتے۔ مجھے چشمے میں نہا کر پاپ دھونے سے تو کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، پھر بھی وقت بچانے کے لیے میں اسی مختصر راستے پر چل پڑا۔